Hello, dosto. Hello, how are you, everyone? I hope everything is fine. You are under control, you are positive, and you are keeping that fantastic energy of living this life to the fullest to your mind. So, आशा कर रहे हैं कि सबको एकदम तंदुरुस्त है और सही सही तरीके से अपना ध्यान रख रहे हैं। दोस्तों, एक छोटा सा बात बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप किसी 2 साल के बच्चे को देखें, 2, ढाई, 3 साल के बच्चे को जिसके नए नए दांत आते हैं, तो वो कितना उसमें इरिटेटिंग रहता है ना कि वो हर चीज चबाना चाहता है। वो कुछ भी आप उसको दे दीजिए, वो दांत में उसको लगाएगा। कचरा खाने की कोशिश करेगा, कपड़ा खाने की कोशिश करेगा, टॉय आप देते हैं उसको तो वो भी खाने की कोशिश करता है। मैं कहता हूँ दोस्तों, हम लोग जब शेयर बाजार में आते हैं ना, तो हम वो 2 साल के बच्चे की तरह है जो हर कुछ कोशिश करते हैं करने की। कभी कोई स्टॉक में ट्रेडिंग कर लिया, कभी किसी के बोलने पे ट्रेडिंग कर लिया, कभी इन्वेस्ट कर लिया। तो हर तरह का काम करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमें पता नहीं है कि क्या सही में वर्क करता है। एक 2 साल के बच्चे को तो दिमाग नहीं है ना कि वो बता सके सही क्या है और गलत क्या है। बट हम उसको डायरेक्ट करते हैं कि भाई ये मत खाओ, ये मत लो, ये मैं तुमको चीवी दे रहा हूँ, ये खाओ, इससे तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी को शायद मेंटरशिप बोलते हैं, इसी को शायद गाइडेंस बोलते हैं। और ये फेस टू फेस सीरीज के माध्यम से मैं आपको वो एक गाइडेंस और एक मेंटरशिप देने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप सही लोगों से सही विजडम ले पाए। दोस्तों, आज का फेस टू फेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जिनके साथ मैं कर रहा हूँ, ही इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, जो मार्केट में सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ही इज बीन इन मार्केट फॉर 25 years। आप देख के उनको बिलीव नहीं करेंगे कि ही इज मोर देन फॉर 50 year old नाउ, but very very fit, and very fit not just in terms of his health, but in terms of his mindset, in terms of what he thinks about the market. And I'm sure that he's making decent money from the market as well. He's a trader, he's an investor, and also he's managing fund of other people. So before I call him, I just want to give a disclaimer that I interview him because I like what he does. I've been following his Twitter handle, I've been following his work. He's phenomenal in what he's doing, but I'm not kind of asking you to take his services. That's not my role. He's great. You evaluate what he is doing and see if you believe that he's doing good, then whatever you want to do, you can do that. Now, I want to invite Mr. Alok Jain into this discussion. Alok bhai, please switch on your webcam. Hi, good morning, Vivek. It's a pleasure to be with you. And Good let morning. me say that I'm a big fan of your work. I've been a user of your app for a long time now. And every evening I open that app and look at what has happened in the day in terms of, the fund flows, in terms of the large deals, in terms of, which investor is sort of making the moves. So and I'm just scratching the surface in your app. I've not even gone deep into it. It has so much more features that one can get into, and the new version is really sort of very appealing graphically. So wonderful work that your team is doing, and as I said to you earlier last year also, a tremendous amount of learning is needed in this market, and you are one source who was very efficiently delivering that knowledge and service, especially to new youngsters who are coming into the market. आज आलोक जी, आज है ना, मतलब छाती फूल रही है, because with your kind of an experience and getting these words from you means a lot. This is only what motivates us to give more. Money Sure. making is actually not has been that great journey for that matter, or objective bhi nahi tha. But the fact that we have been able to add value to people's life, and you are giving testimony of the service. Thank you so much for these kind words. But Alok ji, आपसे मुझे बहुत सीखना है. We have been trying to get in touch, and we have been kind of somehow time का नहीं हो पा रहा था. But I'm very very Sure. glad that I got this opportunity to talk to you today. And I've been a follower of your Twitter handle for a long period. In fact, there were few handles which actually instigated me to come into Twitter and begin the journey of Twitter. I mentioned that Neeraj Marathe is one of them, who Yes. inspired me to come to Twitter, and then thereafter I followed you as well. So I want to learn a lot from you, and I want people to know more about you, your philosophy, because you have seen quite a lot of market. You have seen the pit trading market, and now it's an algo-driven market and rule-based trading market. So please make sure that you share your experience, and you prepare my users to Sure. prepare for this tough market battle, which literally everyone is fighting every day. Correct.
So I'm going to make you the presenter. तो मैं आपको presenter बनाया हूँ. Can you please accept? Yeah, fantastic. So अब आपके सामने है. आप whatever you feel like you want to talk about, please feel free to Okay. talk about it. So let me say that you have to start approaching the market with a business like approach. Like जो full time अगर professional traders हैं या investors हैं, they should be treating this as a business and looking at each and every aspect, what is going wrong, how you can improve, and not take it very lightly, because this is a business where only 2 or 3% people are surviving, and it is essentially a tough environment to play with. Hmm, hmm, hmm. Let me just set this right. Where can I get the slideshow? Okay, can you see the slide? Yeah, I can see the slide. I can see the slide. Okay, so my whole approach is very simplistic in terms of, थोड़ा सा मैं background बता देता हूँ आपको कि I was a stockbroker for about 2 decades. So I started off with a NSE membership. I was running an NSE membership for about 20 years, and I saw hundreds and thousands of investors and traders who came through our platform, and I saw that none of them would be successful unless they were disciplined, unless they had a structure to what they were doing, and unless their approach was such that they were determined to sort of run it like a business. If they were coming in casually कि भाई आज ये कर लेते हैं, कल वो कर लेंगे, आज इसकी सुन ली, आज उसकी सुन ली, तो सबका नुकसान होता है. So my experience with by looking at these thousands of users was कि भाई इसमें discipline probably has the largest role to play in terms of success. So people keep running after strategy कि क्या strategy लगाएं तो success मिलेगा. But I think strategy is about maybe 20% of the game. Yeah. Discipline is maybe the 80% of the chunk. Discipline, money management, position sizing, वो सब चीजें जो हैं वो सारी चंक ऑफ द गेम है, और जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ मे बी 15-20% है. आई मीन यू सिंपलेस्ट ऑफ स्ट्रेटजीज कैन मेक लॉट ऑफ मनी एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज कैन ऑफ कोर्स मेक मनी, बट स्ट्रेटजी पार्ट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. And I keep telling so many youngsters on Twitter also that do not run after one strategy after the other. Each strategy which has been worked out well with in terms of expectancy from backtests etc. will do well. And markets have not changed despite algorithms and so on and so forth. I mean, markets are pretty much the same. Yes, some frequency of moves may have changed over time, but the general psychology of the market does not change, and it has not changed over 200 years. So I'll come to the part where there have been studies done over 200 years of momentum in the market, and it is still not understood by anybody. So there are things of that nature which exist even now. So anyhow, coming back to this, so basically discipline अगर है और simple strategies अगर हैं तो आप उसको handle कर सकते हैं. Now in fundamental investing there are very complex variables that are there. एक तो बहुत बड़े लेवल पे मैक्रो लेवल पे इंटरेस्ट रेट साइकिल्स चल रही हैं, इन्फ्लेशन साइकिल चल रही है, फिर आपके बाहर क्रूड ऑयल मूवमेंट हो रही है, यूएसडी आईएनआर की रेशियो अलग चल रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो वो सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं पूरे आपके इन्वेस्टिंग यूनिवर्स को. राइट. और विद इन द इन्वेस्टिंग यूनिवर्स फिर आपके पास स्मॉल कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनीज हैं. विद इन ईच सेक्टर आपके पास वास्ट डेटा है, वेदर इट इज कमिंग फ्रॉम वेंडर्स और सप्लायर्स और क्लाइंट्स. फिर कंपनी की वैल्यूएशन करने के वेरियस मेथड्स हैं. कोई सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन कर रहे हैं, कोई डिस्काउंटेड कैश फ्लो कर रहे हैं, कोई किसी तरह से कर रहे हैं. मैनेजमेंट की क्वालिटी कंसिस्टेंट नहीं है. कभी बहुत बढ़िया मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है 10 साल, उसके बाद कुछ मैनेजमेंट गोज अंडरगोज सम चेंज एंड मे बी थिंग्स चेंज ओवर देयर. टाइम फ्रेम कितने लंबी आपको होल्ड करना है वो कोई मतलब इट इज बेसिकली नो फॉर्मूला अबाउट दैट. Everybody says, I mean, this is the favorite sort of phrase in the market, long term kar lo. What is long term? In long term we are all dead actually.
Yeah. So what is long term is जब कोई चीज नहीं चल रही होती तो उसको कहते हैं अच्छा 3-5 साल वेट कर लो हो जाएगा ठीक. But that is not how one should be approaching the market. It is not a hope game. When you say that long term में ठीक हो जाएगा, that means that you are giving it a hope game. कि hope कर रहा हूँ मैं शायद ठीक हो जाएगा. होगा या नहीं होगा, that may depend upon luck or other factors, etc. So on and so forth. But your strategy basically is a hope strategy. Correct. Then there is a lot of liquidity flow issues. अब emerging market में liquidity आ रही है नहीं आ रही है, उससे सारी market effect होती है. फिर आपको एंट्री एग्जिट डिसीजंस लेने हैं, वो किस बेसिस पे आप लेंगे. पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करनी है, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाएं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, कितना स्मॉल कैप में रखें, कितना लार्ज कैप में रखें, कितना इंडियन स्टॉक्स में रखें, कितना ग्लोबल स्टॉक्स में रखें. तो इतने सारे वेरिएबल्स हैं और मैंने ये रियलाइज किया ओवर टाइम कि मैं नहीं कर सकता इतना सब. सही बात है. एंड अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट डू इट, बट because it is a way of doing it, it has become like the conventional way of doing investing. तो एक वो चल रहा है कि हाँ fundamental value based investing कर रहे हैं सब बैठ के. So one has to sort of realize is that the success is largely dependent upon your ability to handle that complex equation. Right. वो इक्वेशन अपने आप में जो कर रही है वो कर रही है, बट आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं वो एक बहुत जरूरी पार्ट है उसका. ट्रेडिंग में भी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं. अब आपके ट्रेडिंग में आप बहुत सारी मार्केट्स को वॉच कर रहे हैं, रात को डाउ जोन्स देख रहे हैं, सुबह एसजीएक्स देख रहे हैं, उठ के एंजाइटी हो रही है, इंसोम्निया हो रहा है. फिर यूनिवर्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन कैसे करनी है, आपको कंफ्यूजन में बची हुई है कि कौन से सेक्टर में आज काम करें, सुबह कौन सा टाइम फ्रेम ट्रेड करना है. कोई कह रहा है 5 मिनट में कर लो, कोई कह रहा है 1 आवर में कर लो, कोई कह रहा है 1 मिनट में कर लो. मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग कैसे करनी है. I mean, how much risk should I take on one position? Then there are things like transaction and impact cost. इसके बारे में कोई सोचता नहीं है कि आज मैं अगर 10 लाख रुपए की पोर्टफोलियो से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और कल को मैं अगर 1 करोड़ से करूंगा तो क्या वही स्ट्रेटजीज कामयाब रहेंगी. बिकॉज उसमें इम्पैक्ट कॉस्ट आनी शुरू हो जाएगी. जैसे ही आपकी पोजीशंस लार्ज होंगी, स्लिपेजेस आनी शुरू हो जाएंगी. तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट मैटरिंग. तो एंड बेसिकली आपकी अपनी स्केलेबिलिटी जो है वो आपको थोड़ा सा देख के चलनी होती है कि अगर मैं ये स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ और होपफुली अगर मेरी स्ट्रेटजी ठीक चलेगी और मैं 1 साल 2 साल 3 साल में आई विल ग्रो, then will I be able to keep the same strategy or will I again be having to look for new strategies at that point of time. एंट्री एग्जिट डिसीजन कैसे करें ना करें. ट्रेडिंग एज जो है मेरी आज, सपोज कोई ट्रेडिंग एज रखता है, कोई बीटीएससी ट्रेड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो ट्रेडिंग एज रहेगी कि नहीं रहेगी. There's a lot of unknown risks. So even trading has its complexity, but again, how you are dealing with that complexity is defines what your success will be and कैसे आप उसको execute करते हैं. तो दोनों इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में एक चीज जो मुझे कॉमन नजर आई वो ये थी कि भाई सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन. सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन दोनों जगह पर जहां पर आप इन दोनों वैल्यूज को इम्बाइब करते हैं तो आपको सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी. ओके, सो स्ट्रेटजी बाय इटसेल्फ इज हाईली ओवररेटेड, हाईली ओवररेटेड. ओके, अब जब आपको स्ट्रेस होता है, सपोज ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में भी, किसी भी टाइम पे आपका स्टॉक एकदम 50% गिर गया, यू आर वेरी स्ट्रेसफुल, यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट इट, और आपको पता नहीं है कि क्या करना है उस समय. तो ये बेसिकली दिखाता है कि आप एक गेम में एंटर कर गए हो जिसमें अंदर आपने कुछ सोचा ही नहीं है कि व्हाट विल बी योर रूल्स ऑफ प्लेइंग दैट गेम. करेक्ट. सो unless you are ready with a plan, unless you have thought about scenario building जिसे कहते हैं कि अगर ये होगा तो मैं क्या करूंगा और अगर वो होगा तो मैं क्या करूंगा. राइट. पहले से ही ट्रेड, जैसे कोई इंट्राडे ट्रेड भी कर रहा है, मैं उसको बोलता हूँ कि आप ट्रेड में एंटर करने से पहले अपने पूरे पैरामीटर सारे सेट कर होने चाहिए आपके. आप बाय कर रहे हैं तो कहाँ टारगेट पे प्रॉफिट बुक करेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस करेंगे, कितने पोजीशन लेंगे, ये घुसने से पहले सोचिए. A lot of times people get into investing and after they have invested and after maybe the initial 5-10% drop, then they'll start researching the company. अच्छा इसमें तो ये अच्छा है, इसको रख लेते हैं अभी. This company is doing so well in this and in long term it will be fine. So let me keep this. But that is a absolutely wrong approach to this. वो justify करने के लिए.
जस्टिफाई करने के लिए, और वो आप फिर ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाएंगे उसमें। आपने ट्रेड करने के लिए 2% के लिए आपने उसको ट्रेड को लिया, और आपने 20% उसमें अगर झेल लिया, तो आपका मतलब कोई प्लान ही नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आपको क्या सूट करता है। देर आर so many ways of playing this market. There are so many strategies. There are so many, time frames. You have to figure out over time what is that will suit you in terms of your psychology. बहुत लोगों को Correct. बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग उसमें शायद 50% का ड्रॉडाउन आए, उनको फर्क नहीं पड़ता है. There are other people who cannot stand any pain of loss. I am one of them. I don't want any pain of loss. मैं कहता हूँ कि मेरे को अगर कोई स्ट्रेटेजी है जो 30% CAGR दे रही है, बट मेरे को एवरी नाउ एंड देन मुझे 30-40% का ड्रॉ डाउन भी करेगी, वर्सेस एक और स्ट्रेटेजी है जो मेरे को 20% देगी रिटर्न, लेकिन मेरे को ड्रॉ डाउन 15% का ही आएगा. मैं आलोक जी, एक बार ये ड्रॉ डाउन का कंसेप्ट एक बार बताइए ना सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि सुनते बहुत है ये टर्म को, बट ड्रॉ डाउन बेसिकली ये है कि कोई स्ट्रेटेजी है, जैसे सपोज हमने अपना पोर्टफोलियो 100 रुपए से शुरू किया, तो हमने 4 ट्रेड किए, वो 100 के 110 हो गए. अब हमें कुछ लॉस ट्रेड हुए, उसके बाद हम 110 से 90 पे आ गए. तो हमारा ड्रॉ डाउन जो है वो बेसिकली इट इज ए कैलकुलेटेड फिगर कि हमने मैक्सिमम ड्रॉप क्या सस्टेन किया है अभी तक. तो 110 से 90 आ गए, तो करीबन 19% का हमारा ड्रॉप हो गया है. So it is not the absolute drop of your account, but it is the drop from the highest point achieved till the lowest point that you get to. तो ये periodically मेजर करते हैं कि मंथली ड्रॉ डाउन हो सकता है, क्वार्टरली ड्रॉ डाउन हो सकता है. ये बहुत तरीकों से मेजर हो सकता है. आप डेली बेसिस पे भी, जैसे अगर आपको कोई स्ट्रेटजी इवेल्युएट करनी है, सपोज जैसे मेरे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपको इवेल्युएट करना है कि भाई ये प्रोडक्ट में कितनी वॉलेटिलिटी आ सकती है, तो आप ये देख सकते हैं कि भाई इस साल मैक्सिमम किस पॉइंट तक ये हाई गया था, मैक्सिमम कितना लो गया, उसके बीच में कितना % ड्रॉप हुआ. तो यू आर बेसिकली कैलकुलेटिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर दैट ईयर, कि अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने एंटर किया होता तो मुझे कितना लॉस आ गया होता. तो you could be going from 100 to 200 and back to 150. So drawdown is 200 to 150, 25% drawdown हुआ, लेकिन एब्सोल्यूट गेन फिर भी है, आप फिर भी 100 के 150 पे ही हैं. तो if a strategy has drawdown does not mean कि वो it is not making money. Drawdown is just a measure as to you want to measure how much is the drop from the top that you've seen. तो इस तरह से मैंने ओवर 20 years आई केप्ट ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स. फंडामेंटल इन्वेस्टिंग भी करी, मर्जर एंड एक्विजिशन के जो आपका स्ट्रेटजीज होती हैं, स्पेशल सिचुएशन, डिफाइंड रिस्क, इस तरीके की स्ट्रेटजीज करी. ट्रेडिंग भी करी काफी अलग अलग टाइप की. तो मैंने ये देखा कि नॉन इमोशनल स्ट्रेटजीज एसेंशियली बेसिकली मेरे को सूट करती हैं, कि भाई मेरे को नॉन डिस्क्रिशनरी स्ट्रेटजी रखनी है जिसमें मेरे इमोशंस बाहर होने चाहिए. क्योंकि मेरे को ये समझ में आया कि भाई आई एम ए इमोशनल पर्सन, एंड इफ आई डू अ डिस्क्रिशनरी स्ट्रेटजी एंड इफ आई एम पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, मैं कुछ गलत डिसीजन ले लूंगा, जो कि नॉर्मली केस में सबके साथ होता है. तो द प्लान वाज कि भाई मेरे को डिसीजन लेना ही नहीं है, मैं स्ट्रेटजी बना दूंगा और एग्जीक्यूट करना है, लेकिन मेरे को डिसीजन नहीं लेना उस समय, कि भाई जब बिल्कुल ही क्रंच टाइम होता है कि भाई अब क्या करें, वो उस समय मेरे को डिसीजन नहीं लेना. तो ओनली ऑफ कोर्स डिसीजन वुड बी टू एग्जीक्यूट दैट स्ट्रेटजी. उतना आपको धीरे धीरे ओवर प्रैक्टिस करते हैं साल में आ जाता है कि हाँ भाई अब यू आर डाउन इन द डंप, बट आई नो दैट स्ट्रेटजी विल कम अप, सो कीप डूइंग इट, कीप डूइंग द सेम. दिमाग नहीं लगाने का. तो द बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच आप करिए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की. अगर आप मिलाते हैं अप्रोच उसको, तो कुछ चीजें हैं जो इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें हैं जो ट्रेडिंग में बहुत अच्छी हैं. जैसे ट्रेडिंग में बहुत चीजें अच्छी हैं, जैसे एक चीज है कि लेट योर विनर्स रन. तो आपका स्टॉक चल रहा है, आप उसको क्यों छेड़ना चाहते हो? समथिंग विच इज डूइंग वेल. हमें क्या होता है कि 100 रुपए पे चीज ली, वो 110 हुई, तो हमें लगता है यार इसको बुक कर ले, फटाफट 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 इसको, लेट्स गेट आउट ऑफ इट. बट दैट इज द टोटली रॉन्ग अप्रोच. द अप्रोच फ्रॉम ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज कि आपके
डायरेक्शन में अगर चीज जा रही है तो उसको जाने दीजिए, वो अपने आप आपको हम्म बताएगा कि कब कब वो डायरेक्शन बंद हो रही है, उसमें हम्म वहां पे मोमेंटम खत्म हो रहा है। यू हैव टू वेट फॉर दैट, एंड समथिंग विच इज गोइंग अगेंस्ट यू, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट क्विकली, उसमें वेट नहीं करना है। हम्म तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम आती है वो इसका रिवर्स कर रहे हैं, कि दे आर लेटिंग देयर लॉसेस रन एंड कटिंग देयर हम्म प्रॉफिट्स वेरी वेरी क्विकली, एंड essentially market is more or less, at least in futures and options, it is a zero sum game. तो या 98% की अगर अप्रोच ये है कि हमें प्रॉफिट जल्दी लेना है, तो ऑब्वियसली वो बाकी 2% हैं वो उसका मजे ले लेंगे। और अगर हम्म 98% अप्रोच लोगों की ये है कि हम लॉस में वेट करते रहेंगे, तो भी वो 2% उसके मजे लेते रहेंगे। तो essentially you have to get into that 2% club somehow, and for that you हम्म just need mental training and a plan of action to support your तो अब जैसे मैंने अपने लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि भाई नॉन इमोशनल सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग मुझे करनी है, नॉन डिसीजनरी मेथड से। ट्रेडिंग और हम्म इन्वेस्टिंग के बेस्ट अप्रोच लेनी है। ट्रेडिंग से जैसे कट योर लॉसेस फास्ट, लेट योर प्रॉफिट्स रन। इन्वेस्टिंग से भाई पोर्टफोलियो एलोकेशन, आपके डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, आपका टोटल ओवरऑल एसेट एलोकेशन। ये एसेट एलोकेशन तो लोग सोचते ही नहीं है, ठीक है, यंग एज में जरूरत भी नहीं होती ज्यादा सोचने की, बट एज यू गेट ओल्डर यू नीड टू थिंक अबाउट एसेट एलोकेशन, ये 100% हम्म इक्विटी में रखना है कि आपको और भी हेज भी करना है उसको, पोर्टफोलियो को। lot of people don't really go out of equity to look for the advantages of asset allocation, but that's a different हम्म subject altogether. तो एज, अब आपको एक एज ढूंढनी है मार्केट में और उस प्रोसेस को इनफाइनाइटली रिपीट करना है, दैट इज व्हाट इज सॉर्ट ऑफ नॉन इमोशनल सिस्टमैटिक वे ऑफ वर्किंग। कि कोई भी एज है, सपोज मेरे को कोई एक एज मिल रही है कि भाई मैं अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर कोई स्टॉक जा रहा है तो मैं उसको बाय कर रहा हूँ, सपोज ये एक बहुत सिंपल सी हम्म स्ट्रेटेजी है। तो वो एक एज है, अगर अगर उस वो करने से आपको एक ओवर ए लॉन्गर पीरियड एक एडवांटेज और एक्सपेक्टेड रिटर्न अच्छी आ रही है उसमें, तो वो एक आपकी एज है। हम्म और आपको वो प्रोसेस रिपीट करना है बेसिकली, कोई भी एज पकड़ के उसको रिपीट करना है प्रोसेस को। अच्छा, पोजीशन साइजिंग रिस्क मैनेजमेंट आपके डिजाइन का सेंटर पीस होना चाहिए, बिकॉज अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी अगर आप पोजीशन साइज और रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो जीरो अंडा है। You cannot make money if you are going to take 9 trades of 1% profit each, and if you're going to lose 20% on the 10th trade, then it is useless, हम्म। right? अच्छा, बैक एक टेस्ट आप मैंने करते हैं? एक मैं एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा था कि मैंने किसी का ऐसे ही फेस टू फेस किया था। उन्होंने मुझे बताया था कि देख, ट्रेडिंग और शेयर बाजार इज एज इक्विवेलेंट टू अ हाई हाई इंटेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और जैसे एक स्पोर्ट्समैन अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करता है ना, रेगुलर प्रैक्टिस करके साइकोलॉजिकली अपने आप को तैयार करता है और सारे सही इक्विपमेंट को लेके अपने आप को तैयार करता है, तब वो मैदान में उतरता है खेलने के लिए। तो वैसे ही ट्रेडिंग भी उसी तरीके से ही अप्रोच करना चाहिए, जो कि लोग नहीं करते हैं। इसको बहुत कैजुअली समझते हैं कि ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तो बटन दबाना, लेना और बेचना है। एक्चुअली यू राइट, अभी बहुत ज्यादा कैजुअल अप्रोच है लोगों की के हम्म जस्ट जब व्हेन द रैली इज कमिंग, पहले तो जब मार्केट डाउन होती है तब तो कोई इन्वेस्ट करता नहीं है, and when it is the हम्म last 20% of the market, when everybody is running towards stocks, then people start running towards फिर इधर से सुना उधर से सुना उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो प्लानिंग कुछ नहीं करना चाहते। इनफैक्ट आई कैन हम्म टेल यू 99% of the people are so lazy that they will not even write down the trade after trading every day, जो कि बहुत जरूरी हम्म पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का। यू हैव टू डॉक्यूमेंट योर ट्रेड, you have to write down why you took the trade, what went wrong, what went right, how will you improve next time। आपको वो आधा एक घंटा लगाना है मार्केट के बाद। हम्म आप अगर सोचते हैं कि आप मार्केट में आएंगे सुबह उठ के और आज अच्छा अच्छा सीएनबीसी या किसी और चैनल पे ये बोल रहे हैं कि ये वाला स्टॉक चल रहा है उसमें लगा देते हैं आज, तो दैट इज जस्ट थ्रोइंग अवे योर मनी। डोंट डू दैट। करेक्ट, राइट राइट राइट। सो सो बेसिकली द डिसीजन की, अच्छा ये सब स्ट्रक्चर बनाने के बाद मेरा डिसीजन ये था कि भाई मैं फंडामेंटल करूं या प्राइस बेस्ड करूं। तो राइट। मैंने ये चार्ट बनाया कि भाई मैं ये कैसे दोनों के बीच में कैसे वो करें। तो समझने के लिए आप ये देखिए कि जब आप फंडामेंटल बेस्ड कोई स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये मेरी अजम्पशन है कि आईटीसी कल को ये करेगा फॉर एग्जांपल,
हाँ It is हाँ my assumption that ITC will do well in next 3-4 years because of this reason, and you may be right about it. Whereas in price action based strategy, you are saying कि मुझे नहीं पता कि ये स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा, बट अगर ये बढ़ना शुरू होगा तो मैं इसको फॉलो कर लूंगा. Right? Can you see the difference of the approach? One is my yeah yeah psychology and one is the mass psychology, following the mass psychology. ठीक है. अच्छा, वैल्यू फाइंड में आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, हाँ जी 190 रुपीज में बहुत वैल्यू है इसके अंदर. ठीक है. जी अब क्या होगा, वैल्यू तो है बट चलेगा कब, जब उसमें मोमेंटम आएगा. अगर वो 5 साल नहीं चला तो मैं 5 साल के बाद जब मोमेंटम आएगा तब ले लूंगा ना, मेरे को जल्दी क्या लेने की. सही है. वैल्यू है, ठीक है, मान लिया वैल्यू है, बट वैल्यू बाय इटसेल्फ इज नॉट गिविंग मी रिटर्न. रिटर्न विल कम व्हेन द प्राइस विल मूव. करेक्ट. तो माइट एज वेल वेट फॉर द प्राइस टू मूव. थोड़ा जाएगा, करेक्ट. 20% आपका लूज हो जाएगा, हो जाने दो. मैं देखता हूँ लोग वैल्यू में जो, ठीक है, उनका भी एक दे हैव ए फेथ ऑन दैट थ्योरी एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, लेकिन मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से टू सिट इन अ स्टॉक एंड लूज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर कैपिटल एंड नॉट नोइंग व्हेन इट विल स्टार्ट टू रन इज अ वेस्ट ऑफ मनी, एंड दैट इज जस्ट माय पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दैट. अच्छा, फिर उसमें एक टर्म होती है, लॉट ऑफ पीपल आर इन आईटी, उनको समझ में आ जाएगा, ये विजिबल टर्म होती है कि व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. तो राइट. अब इसमें जब हम फंडामेंटली इन्वेस्ट करते हैं तो हम गेस करते रहते हैं कि ये कब चलेगा, इसमें कब ये एक्शन होगा, कब इसमें कुछ चेंज आएगा. वेयर जब हम प्राइस एक्शन में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे सामने वो एक्शन हो रहा है. यू नो द एग्जीक्यूशन इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस. वी आर नॉट हैविंग टू गेस कि प्राइस का मूव होगा नहीं होगा. अच्छा, फिर जैसे लिक्विडिटी फ्लो रिवर्स हो गया. अच्छा, इमर्जिंग मार्केट्स में से लिक्विडिटी बाहर निकल गई, वो तो हमारे इंडिया के कंट्रोल में ही नहीं है. अगर सपोज एफआईआई स्टार्ट टू सेल 2000 करोड़ 5000 करोड़ एवरी डे, आप कुछ नहीं कर सकते. वैल्यू हो चाहे कुछ भी हो, कुछ नहीं कर सकते आप. तो फंडामेंटल बैक सीट लेके बैठ जाएगा, आपको ठीक है यार, अब अगली रैली में जब चलेगा तब देखेंगे. वेयरएज प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी में आप घुसेंगे ही नहीं उस स्टॉक में जो गिर रहा है, या आप अगर आप घुसे हैं तो आप निकल जाएंगे फटाफट. तो इसका सार ये निकला इसमें कि अगर आप फंडामेंटल बेस्ड स्ट्रेटजी कर रहे हैं तो आप ये इन अ वे आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे मार्केट से ज्यादा पता है. Market is stupid. Market is not able to value this, but I know more than that, so I should buy this. Whereas in momentum price and action based strategy, हम कह रहे हैं ये BBC प्रिंसिपल है, भाव भगवान से, प्राइस इज गॉड. मार्केट ने बोल दिया प्राइस नहीं चल रही तो नहीं चल रही, मार्केट ने बोल दिया प्राइस भाग रही है तो भाग रही है, हम फॉलो कर रहे हैं मार्केट को. आई एम नोबडी टू टेल द मार्केट व्हाट इट शुड डू. तो बहुत कंट्रास्टिंग और स्टार्क डिफरेंस है दोनों अप्रोचेस में. सही तो है. मेरा डिसीजन था कि मेरे को तो प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी करनी है, क्योंकि मैंने सब कुछ ट्राई करके और अपनी साइकोलॉजी को उसके साथ मिला के मैं इस पॉइंट पे आया कि भाई मेरे को तो ये लॉजिकल भी लगता है. कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मेरा लॉजिक से बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन है. विदाउट लॉजिक मतलब मेरे को बड़ी मुश्किल हो जाती है कोई भी चीज समझने में. तो लॉजिक हो तो मतलब मैं फटाक से समझ जाता हूँ कि भाई अब इसके अंदर ये ठीक है. तो मैं मोमेंटम स्टाइल को, हाँ जी बोलिए. मुझे एक बात बताइए आलोक जी, जैसे मजाक कर रहा हूँ बीच में, ये भाभी जी तो हर बात लॉजिक के साथ प्रेजेंट नहीं करती है, तो वहां डांट पड़ती होगी क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, मेरे साथ भी है कि मैं हर चीज में इमोशंस पे भी लॉजिक ही ढूंढता हूँ. देखो, आपको तो 2-5 साल हुए होंगे अभी, लेकिन मेरे को हो गए ऑलमोस्ट 24. तो you know you get used to a lot of things in life, and and basically both grow to realize how each other's mind works. तो हो जाता है धीरे धीरे. तो मोमेंटम स्टाइल बेसिकली यही है कि बाय हाई एंड सेल हायर, जो आप कन्वेंशनली बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई बाय लो सेल हाई, क्योंकि हमें बचपन से एक घुट्टी पिलाई दी जाती है कि भाई बाय लो सेल हाई, नीचे खरीदना है और ऊपर बेचना है. कोई भी आप मोबाइल खरीद रहे हैं तो Amazon पे भी जाएंगे, आप शायद फ्लिपकार्ट पे भी जाएंगे, जहां सस्ता मिलेगा वहां ले लेंगे, राइट. बट दिस इज नॉट, यू आर नॉट बाइंग ए कमोडिटी फॉर यूज, you are chasing a trend, right? You are saying कि मोमेंटम में कि I want to
board a train which is moving. I don't want to board a train which is stationary and which has no schedule of when it will move. Right? मैं बड़ा क्लासिक एग्जांपल बोलता हूँ कि भाई आप बस स्टैंड गए, दो बसें खड़ी थी वहां पे, एक में तो बहुत बढ़िया वॉल्वो लग्जरी बस, उसमें बिल्कुल नया पेंट हुआ हुआ, स्मार्ट और वेल ड्रेस्ड ड्राइवर, इंग्लिश बोल रहा है वो और कह रहा है कि प्लीज सर कम इनटू माय बस एंड बट आई डोंट नो व्हेन आई विल गो, एंड देयर इज अनदर बस व्हिच इज फुल एंड व्हिच इज जस्ट अ नॉर्मल बस, और वो चलने को तैयार है, वो कह रहा है पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, मैं तैयार हूं जाने को। तो आप कौन सी बस चुनेंगे? आप या तो फैंसी बस में जाके बैठ जाइए कि भाई पता नहीं कब चलेगी, लेकिन मेरे को बड़ा कंफर्ट है इसके अंदर, बड़ी क्वालिटी ऑफ ड्राइवर क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है इसमें, और बड़ी इसके रिव्यूज अच्छे हैं, और मैं तो इसमें बैठ गया और जब चलेगी चलेगी, आई एम कंफर्टेबल विद दैट। दूसरा है कि नहीं भाई मेरे को तो पॉइंट ए टू पॉइंट भी जाना है, मैं तो जा रहा हूँ यार, ये सब छोड़। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू नो choosing a stock which is running. So when you're buying high and you're selling higher, you are basically saying that I am not willing to wait for stocks which are not moving. I want to buy stocks which are moving. I want to buy which are stocks which are in momentum, and I'll buy high. अच्छा एक और चीज है, बहुत लोग ये 52 वीक हाई या इस तरीके के जो ऑल टाइम हाई, इससे डरते हैं लोग कि भाई स्टॉक 52 वीक हाई आ गया है, वो निकल जाओ इससे, तो क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया। बट एक्चुअली में आप अगर आप एक सेकंड के लिए टेक अ बैक स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट, एक स्टॉक है जो मल्टी बैगर बनता है, वो 100 से 800 जाता है सपोज, ठीक है, और उसका प्रीवियस सपोज हाई 150 था और अभी 100 रुपए पे है, अब वो 100 से 150 पे जाएगा जब, तो बहुत सारे लोग निकल जाएंगे उसमें से कि ये 52 वीक हाई आ गया, ऑल टाइम आ गया, निकल जाओ इसमें से, इसका तो हाईएस्ट पॉइंट आ गया। बट अगर उसने मल्टी बैगर बनना है तो वो 150 के ऊपर 200, 250, 400, 500, 800 जा रहा है, आप उसको इतनी जल्दी क्यों छोड़ना चाहते हो? तो देयर इज अ सेट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि मैं तो 150 से पहले खरीदना ही नहीं, मुझे मैं तो 150 के ऊपर ही खरीदूंगा, let the stock tell me that it is trying to become a multi bagger, why should I rush? So that is buying high and selling high. अच्छा फिर हमारी स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि सिट इन कैश व्हेन देयर इज नो अपॉर्चुनिटी। नॉर्मली क्या होता है इन्वेस्टिंग में, भाई स्टॉक गिर रहे हैं बट वेट कर रहे हैं बैठ के कि कभी चलेंगे, नेक्स्ट साइकिल में चलेगा, देखेंगे। म्यूचुअल फंड्स में तो वो बेचारे दे आर नॉट एबल टू सेल द स्टॉक बिकॉज उनके ऊपर एक रेगुलेटरी बाइंड है कि भाई इससे ज्यादा कैश नहीं रख सकते आप, 10%, 15% से ज्यादा, तो वहां फंसे हुए हैं वो लोग। So the idea is to chase trends, ride winners, and ditch the losers early. That is a basic simple idea. तो जो बिल्कुल अगर 2 year child को अगर समझाना है तो basically what we're doing is buy what is going up, sell what is going down. Right. This is the sort of the guru mantra of this. तो अभी मेरे पास 2 एग्जाम्पल हैं, अगर आप बोले तो मोमेंटम स्ट्रेटेजी के अंदर थोड़ा डीप डाइव करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आई कैन टॉक अबाउट जनरल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग फिलोसफी, सॉर्ट ऑफ फिलोसफी रिलेटेड पॉइंट्स। नहीं सर, डीप डाइव करते हैं सर, डीप डाइव डोंट वरी अबाउट टाइमिंग, आप प्लीज अपना अच्छा जितना हमको डीप लेके जाना चाहते हैं लेके चलिए सर। नहीं, मैं इसलिए पूछा था कि बिकॉज टाइम में यूजुअली पीपल डोंट वांट टू वॉच अ वेरी लॉन्ग थिंग, सो इसलिए मैं। नहीं सर, हमारा चैनल बदनाम है इसलिए हम लंबा वीडियो ही देते हैं हम एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस कम बनाते हैं। इनफैक्ट वरिंदर का वीडियो मुझे याद है 2 घंटा का वीडियो था। ओके और पीपल रियली लव्ड इट बिकॉज सर 10-15 मिनट में नहीं समझाया जा सकता है सीरियस बातें। तो बेसिकली मोमेंटम इज अ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, इसको इन्वेस्टिंग कह लो आप ट्रेडिंग कह लो, दैट इज अप टू यू, बिकॉज द लाइन बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इज वेरी ग्रे। अगर मैं 2 महीने में सपोज स्टॉक चर्न कर रहा हूँ, वेदर दैट इज ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इज अगेन अ वेरी ग्रे एरिया, नोबडी इज एबल टू डिफाइन व्हाट इज द सॉर्ट ऑफ एज ऑफ ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। तो मोमेंटम एक स्टाइल है, जैसे मैंने कहा कि भाई व्हाट इज गोइंग अप यू आर बाइंग, व्हाट इज कमिंग डाउन यू आर सेलिंग। तो एक जैसे अब न्यूटन का लॉ है कि व्हाट an item which is an object which is in motion keeps on in motion till it stops। तो उस तरीके से एक मोमेंटम एक स्ट्रेटजी है कि उसमें आपकी थीसिस ये है कि अगर कोई स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम है तो वो अपवर्ड मोमेंटम उससे मेंटेन रहेगा फॉर सम टाइम, तब जब तक वो मोमेंटम खत्म नहीं होता, और ऐसे ही डाउन साइड में भी होता है। तो हम बेसिकली उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये
लोगों ने 200 साल की स्टडीज करी हुई है यूएस वगैरह में, जहाँ पे डेटा अवेलेबल है इतना, एंड दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये मोमेंटम वाली स्ट्रेटजीज क्यों कामयाब है। जो फादर ऑफ जी फाइनेंस यूजीन फार्मा है, उन्होंने बड़ा जी फेमसली कह रखा है कि मोमेंटम इज द बिगेस्ट एनोमली इन द मार्केट। किसी को समझ नहीं आता कि मोमेंटम हम्म क्यों एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम्म मोमेंटम स्ट्रेटजी अगर अगर इसको आप मेजर करते हैं, और लोगों ने स्टडीज में अपने थीसिस में मेजर करा हुआ है, इट हैज बीटन वैल्यू, इट हैज बीटन ग्रोथ, इट हैज बीटन ऑल काइंड्स ऑफ अदर इन्वेस्टिंग हॉलो ओवर लास्ट 200 years। तो एक बहुत प्रोवन टाइप का स्टाइल है, बट इट इज काउंटर इंट्यूटिव। इसकी इसकी जो डाउन साइड है वो यही है कि ये काउंटर इंट्यूटिव है। जैसे मैंने बताया कि बाय हाई और सेल हायर, ये एक आपकी एक नेचुरल फील्ड से बिल्कुल रिवर्स है ये। इसलिए इसको करना इजी नहीं होता। सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। तो जी थिंग्स विच आर सिंपल मे नॉट बी इजी, सी देयर इज अ डिफरेंस, राइट। तो इसके अंदर जैसे हम जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। कि सपोज हमने बिग 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना दिया, और उसके अंदर हमने एक रेट ऑफ चेंज लिया कि पिछले 12 महीने में, सपोज हमने एक यूनिवर्स भी डिफाइन कर दिया कि CNX 200 यूनिवर्स से हम उठाएंगे सारे स्टॉक्स। ठीक है अब हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या है पिछले 12 महीने में हर स्टॉक का। रेट ऑफ चेंज इज आज की प्राइस वर्सेस 12 मंथ अर्लियर प्राइस। व्हाट इज द चेंज ऑफ प्राइस ठीक है फ्रॉम 12 मंथ बैक टू नाउ। ठीक है। ऐसे हमने अपने 200 स्टॉक्स की एक लिस्ट बना ली कि हर में कितने कितने परसेंटेज चेंज है पिछले 12 महीने। और लेट्स से कि मैंने टॉप के 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, 5% लगा के इन्वेस्ट कर दिया उसमें। ठीक है। टॉप के और 20 का मतलब हो गया जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चेंज है, राइट। जिसमें कोई जैसे अडानी ग्रीन है, उसके अंदर 250% गेन है सपोज 1 ईयर में, तो हाँ वो मेरे नंबर 1 है। फिर ऐसे ठीक करते है करते नीचे आप आएंगे। तो आपने रैंकिंग कर ली, सॉर्ट कर दिया, तो यू ठीक है टेकन द टॉप रनर्स ऑफ लास्ट 1 ईयर, ठीक है और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया 5% सपोज। ठीक 100% है आपका 5% के हिसाब से 20 स्टॉक में लगा दिया आपने। अब 1 महीने बाद आपने ये फिर से करा, जैसे आपने 1 ठीक जनवरी है को ये किया था, अब आपने 1 फरवरी को फिर से ये 12 महीने का रन किया। और अब आप ठीक है सपोज ये देख रहे हैं कि जो टॉप 40 स्टॉक्स हैं, अब मेरे जो ओरिजिनल टॉप 20 थे वो 40 के नीचे तो नहीं गया उसमें कोई। राइट सपोज राइट कोई स्टॉक 40 के नीचे चला गया, तो मैं उसमें से बाहर हो जाऊंगा, हाँ और जो राइट अब टॉप 20 में नया जो आ गया उसको मैं ले लूंगा। सही है ठीक है। सपोज ये स्ट्रेटेजी सही है, है ये दिस इज जस्ट सिंपल एग्जांपल्स। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली ये हाँ करना हाँ चाहिए, बट दे आर सिंपल हाँ हाँ एग्जांपल्स। हाँ तो अब बस, अब आप देखिए कि दीज आर ऑल द रूल्स। ये इसमें 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 सारे रूल आ गए स्ट्रेटेजी के। कैन यू बिलीव दैट द सिंप्लिसिटी ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट। अच्छा, मैं एक नॉर्मली एक चीज कहता हूं कि आपको 4 चीजें हमेशा एक स्ट्रेटेजी के बारे में पता होनी चाहिए। व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, एंड व्हेन टू सेल। ये 4 रूल, राइट इन्वेस्टिंग हो, ट्रेडिंग हो, ये 4 रूल आपके हमेशा क्लियर होने चाहिए। इसमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि भाई सोच रहे हैं कि अच्छा कब बेचें, ये नहीं होना चाहिए। व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, एंड व्हेन टू सेल, ये 4 रूल क्लियर होने चाहिए। अब इसके अंदर देख लीजिए आप एग्जांपल में, व्हाट टू बाय में आपका आ गया CNX 200 यूनिवर्स। व्हेन करेक्ट टू बाय में आ गया एवरी मंथ ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। करेक्ट हाउ मच टू बाय 5% ईच। व्हेन टू सेल करेक्ट व्हेन इट गोज बिलो 40th रैंक। चारों इसमें मेरी सब स्ट्रेटेजी के चारों रूल बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं, इसमें कोई करेक्ट सोचने की करेक्ट बात नहीं। करेक्ट। अब ये करेक्ट जैसे थोड़ा सा डिपिक्शन आप देख लीजिए कि फर्स्ट मंथ में यहाँ पर 200 स्टॉक्स में से आपने टॉप 20 ले लिए जनवरी में। ये पुरानी स्लाइड है थोड़ी सी, जनवरी 18 में टॉप 20 ले लिए। अब टॉप 40 में नहीं रहा जी तो आपने ड्रॉप कर दिया और उसकी जगह दूसरा रिप्लेसमेंट ले लिया। जी ऐसे करके आप रिपीट करिए हर महीने। सिर्फ यही करना है, महीने में 5 मिनट लगाने हैं। ठीक है। इसका रिजल्ट देखिए, 2013 से अगस्त 2018 की ये स्टडी है, क्योंकि ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है। जी जी CAGR was 31%। ठीक है, मार्केट भी उस समय बहुत अच्छी थी 13 to 18, बट उसमें बहुत सारे डिप्स भी आए थे। 13 का भी डिप था, 15 की डिमोनेटाइजेशन भी थी, ट्रम्प की इलेक्शन भी थी उसके अंदर। तो जनवरी टू अगस्त की 18 की ड्रॉप भी थी स्मॉल कैप्स में। तो इट हैड इट्स फेयर शेयर ऑफ ड्रॉप्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि वो 13 to 18 वाज जस्ट वन पीरियड दैट वी आर सेलेक्टिंग। But I just want to show you the magic of
हैविंग ए स्ट्रेटेजी एंड हैविंग ए प्लान। अब इसमें 5 साल में कैपिटल आपके ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है, CAGR 31% है, ड्रॉडाउन 22% है। तो कोई भी मैक्सिमम जो पॉइंट रीच हुआ वहां से सिर्फ 22% का ड्रॉप आया इसके अंदर। सिर्फ 137 ट्रेड्स हुए इसके अंदर ओवर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो एवरेज होल्ड आपकी 5 महीने है। अब आप इसको ट्रेडिंग बोल लीजिए, इन्वेस्टिंग बोल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। 62% विनिंग ऑफ ट्रेड्स हुई है सिर्फ। This is something which lot of people are, unnecessarily wasting their time trying to get 90% accuracy of trades. आपको 30, 40, 50% भी अगर विनिंग ट्रेड मिलते हैं, that is good enough. Each winning trade has to be much larger than your each losing trade. That is the only game. इसको कैसीनो मैथ बोलते हैं कि आपने 10 ट्रेड करने हैं, 5 अगर विनर है, 5 लूजर है, तो भी आप बहुत बड़े विनर बन सकते हैं, क्योंकि आपने जो 5 विनर जो आपके होने हैं वो इतना आपको कमा के देंगे, जो आपके 5 छोटे लूजर्स हैं उसको ओवरवेलम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपए हैं, आप 10 ट्रेड में लगाते हैं 10-10 रुपए, 5 में आपको 10 रुपए के पीछे आपको 50% की गेन मिलती है, और जो दूसरे 5 है उसमें 10 रुपए के पीछे आपको 20% की लॉस होती है। ओवरऑल यू स्टिल मेक लॉट ऑफ मनी, राइट? सो यू हैव टू अप्रोच द मार्केट विद a mathematical way of return. अब इसके अंदर 62% विनिंग है, लेकिन ईच विन इज 4 टाइम्स ईच लूजर। एवरेज लॉस जो हो रहा था इसके अंदर वो 12% हो रहा था, लेकिन एवरेज विन जो हो रहा था वो 47% हो रहा था। अब इसके अंदर देखिए आपको रिजल्ट में भी और इसमें स्टॉक्स भी दे रखे होंगे। अब देखिए इस पीरियड के दौरान आइशर मोटर ने 390% रिटर्न, SRF 260% रिटर्न, टीवीएस मोटर 217% रिटर्न, और जो बिगेस्ट लूजर है पीसी ज्वेलर, सुजलॉन, ये 60%, 40%, 35%। तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है विनर, बिग विनर्स और बिग लूजर्स में। तो आपको अप्रोच करना है नॉन इमोशनल। आपको ये नहीं देखना है कि पीसी ज्वेलर में क्या हो रहा है, सुजलॉन में क्या हो रहा है। वो सुजलॉन चाहे कल को छोले भटूरे बेचना शुरू करते, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ। मतलब दिस इज मतलब मेरे को दिस इज स्टॉक, इट्स ए लिक्विड स्टॉक, इट इज रनिंग, आई डोंट वांट टू नो व्हाट एल्स इज हैपनिंग। सही है। तो अगर आप अब ये देखें, अब चलो ये तो रिलेटिव का इसमें मतलब क्या हुआ कि मैं रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ 200 स्टॉक्स के बेसिस पे ये सिलेक्शन कर रहा हूं। अगर मैंने आइशर मोटर चुना है तो वो 200 में रिलेटिवली बेसिस पे ऊपर है वो। अब एक और स्टाइल ऑफ मोमेंटम होता है, वो होता है एब्सोल्यूट मोमेंटम। उसमें हम उस स्टॉक को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं भाई ये जो स्टॉक है हम इसको अपने उसके खुद के पैरामीटर से कंपेयर करेंगे। तो जैसे अब हमने इक्वल वेटेड अगेन 20 स्टॉक्स का सपोज पोर्टफोलियो लिया, अगेन वेरी सिंपल रूल्स। सपोज प्राइस एक्सीड्स 200 डीएमए, हाँ ठीक, सेल रूल क्या है, प्राइस बिलो 200 डीएमए, और एक फिल्टर लगा दिया 5% का कि अगर 200 डीएमए प्लस 5% होगा तो हम लेंगे, और 200 डीएमए माइनस 5% होगा तो हम निकल जाएंगे। हाँ। एक लिक्विडिटी फिल्टर लगा दिया कि 1 करोड़ की कम से कम एवरेज टर्नओवर होनी चाहिए इसकी, नहीं तो हम नहीं जा रहे इसके अंदर। और अगर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो हम बाहर बैठ जाएंगे, एक्सपेंसेस वगैरह सब बिल्ट इन कर करा के। इसका देखिए रिजल्ट क्या आया। कैपिटल फ्रॉम, ये 15 साल की स्टडी है और इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी, उसमें कैपिटल 40 टाइम्स हो गई 15 साल पीरियड। CAGR ऑफ 25%, ड्रॉडाउन यस इसमें हाई है क्योंकि आप एक लार्जर टाइम स्केल पे आप डील कर रहे हैं। 200 डीएमए ब्रीच होने में बहुत टाइम लगता है कई बार। तो ड्रॉडाउन 2008 में ड्रॉडाउन आया था जिसमें के 72% गिर गए थे स्टॉक। इंडेक्स वाज डाउन आई थिंक मे बी 65 और 70%, बट इसमें फिर भी ड्रॉडाउन 57% ही है। 461 ट्रेड्स हैपेंड, एवरेज होल्डिंग ऑफ 11 मंथ्स, स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई मेरी, विंस 31% ऑफ ट्रेड्स। सिर्फ 31% ट्रेड विनर हुआ है इसके अंदर। क्या बात है। लेकिन आप ये देखिए एवरेज विन इज 117%, एवरेज लूजर इज 13%। वाह 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 वाह। So this totally breaks the myth that you want to have large number of winners. आप देखेंगे जितने भी ऐड आते हैं ना गूगल पे ट्रेडिंग के और इन्वेस्टिंग के, 99% सक्सेस, 90% विनिंग ट्रेड। अरे बाबा नहीं चाहिए 90%। अगर कोई बोल रहा है 90% तो वो मोस्ट लाइकली वो फ्रॉड है। With 90% winning you cannot do it, you cannot do it. The world's largest biggest traders are near 30, 40, 50%। 90% नहीं आ सकता है। आप अगर का आ रहा है तो देन यू आर ए मैजिशियन एंड गुड लक टू यू, बट 90% इज नॉट द नॉर्म।
of एक successful छोटा सा traders. क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें, मार्केट का जो मेजर इंडेक्स है निफ्टी है सेंसेक्स, उसका 200 डीएमए का कोई रिलेवेंस है इसमें? उसमें आप डाल सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा रूल इसको अगर ऐड करना है तो इसमें आप डाल दीजिए हाँ, कि निफ्टी 200 डे में ओएम के नीचे गया तो मैं सब कैश में करके बैठ जाऊंगा सब कुछ। अच्छा ठीक है। यू कैन हैव ए चाहे राइडिंग स्टॉक ओवर 200 चाहे स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर में है, बट अगर निफ्टी 200 डीएमए के नीचे चला गया तो मैं एक बार बेच दूंगा। हाँ, तो वो एक तरह की ये है ना कि हजारों टाइप की स्टडीज बन सकती हैं। हाँ इसमें हाँ, कोई एंड करेक्ट तो है। है नहीं। तो आपको बेसिकली देखना है कि भाई एक तो बैक टेस्ट करना है बहुत अच्छी तरह से कि भाई मेरा मेरा मैं अगर ये जो ओवर राइडिंग फिल्टर लगा रहा हूँ तो पिछले 15 साल में क्या हुआ होता अगर मैं ऐसा करता। तो उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। बैक टेस्ट से बस यही है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। बैक टेस्ट डज नॉट हम्म, मीन कि अगर पहले 25% आया तो अभी भी 25% आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। करेक्ट। बट आपको बैक टेस्ट करने से कॉन्फिडेंस मिलता है दैट दिस स्ट्रेटजी हैज डन वेल एंड दिस हैज यू हैव सीन इनफ आइटरेशंस दैट इट कैन डू वेल। अच्छा, इसमें भी क्या है देखिए, विनर्स देखिए जरा। कावेरी सी 1000%, मार्क्सन्स 940%, भारती 913%। अब आपने भारती ले लिया 50 रुपए पे और आपने 500 रुपए तक नहीं बेचा और उसके बाद आपने 500 रुपए बेच के अगले 10 साल उसको इन्वेस्ट नहीं किया, तो इज दैट नॉट अ बेटर डील इंस्टेड ऑफ सिटिंग विद इट फॉर हम्म 10 years? और जो आपके स्टॉक्स गिर रहे थे उनको आपने फटाफट निकल गए। अब लूजर देखिए आप 40% के आसपास लूजर है, विनर देखिए आप हंड्रेड्स ऑफ परसेंट में विनर्स हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको यू हैव टू कीप योर विनर्स रनिंग। सबसे बड़ी जो लर्निंग आदमी को चाहिए है वो ये है कि जो आपकी चीज ठीक चल रही है उसको छेड़खानी नहीं करनी उसके अंदर। 100% बढ़ गया तो डर रहे हैं कि नहीं जी अब तो गिर जाएगा। अरे जब गिरना शुरू होगा तब बेच लेना ना, अभी जल्दी क्या हो रही है? यू गिव अप द हम्म फर्स्ट टॉप 20%। टॉप पकड़ने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। 100 से 200 हो गया तो मेरे को 200 पे क्यों बेचना है? मैं 160 पे भी बेच सकता हूँ ना, क्योंकि अगर 160 पे बेच रहा हूँ तो 200 से कर सकता हूँ। 200 से 500 होने का चांस तो नहीं छोड़ रहा मैं। यू हैव टू कीप दैट होप अलाइव आल्सो दैट माय स्टॉक कैन कीप डूइंग वेल। अभी हमारे करंट पोर्टफोलियो में कितने विनर्स हैं? आरती ड्रग्स, अडानी ग्रीन, एसटेक, आईओएलसीपी, वो 200%, 300%, इस तरीके के विनर्स हैं उसके अंदर आज की मार्केट में भी। बट वी आर नॉट इन रश टू गेट आउट ऑफ दैम। जब वो गिरेंगे, गिरना शुरू होंगे तब हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से निकल जाएंगे उसमें। जल्दी क्या हो रही है? तो इन सब सही है। एग्जांपल्स में क्या assumptions थी, ये जो दोनों मैंने स्टडीज दिखाई और रिजल्ट दिखाए, कि एक तो इसमें सर्वाइवर बायस फ्री रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे हमने सीएनएक्स 200 पे अगर 5 साल की स्टडी करी तो सीएनएक्स 200 की नेचर थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है। कुछ स्टॉक्स निकलते रहते हैं, कुछ जाते जी रहते हैं, तो माइनर डिफरेंस उसकी वजह जी। से आ सकते हैं। डिविडेंड्स इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं जो रिटर्न्स आई थी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अज्यूम करी हुई है डिस्काउंट ब्रोकरेज की। स्लिपेजेस को अज्यूम नहीं करी है और टैक्स और एडवाइजरी फीस को इंक्लूड नहीं करी। तो आई जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर दैट whatever या results I'm showing are not fictitious. तो राइट 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 राइट। अब मैं एक आपको थोड़ी फिलोसॉफिकल साइड ले जा रहा हूँ उसमें कि ये मैंने अभी पहले भी कहा कि जो सिंपल चीजें हैं वो इजी नहीं है। लाइक इट इज वेरी हम्म सिंपल टू से कि रोज 1 घंटा वॉक कर लो, बट क्या वो इजी है करना? इट इज वेरी सिंपल। जस्ट गो वॉक फॉर 1 hour एंड कम बैक। बट फिर भी वो इजी नहीं लगता लोगों को, राइट? सो डिसिप्लिन डिसिप्लिन इजी नहीं है। तो हमें बेसिकली वी हैव टू ट्रेन अवर माइंड कि हमें एसेंशियली डिसिप्लिन रखना है और सिंपल चीजों को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि हमारा माइंड इससे इनसे भागने की कोशिश करता है। और ऑन द फ्लिप साइड कॉम्प्लेक्स स्टोरी बड़ी इजीली सॉल्व हो जाती है। जितने अब आपके सही। मार्केट में आप देखेंगे फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट, हम्म दे आर वीविंग ए वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी। मतलब हम्म everybody hates me in that industry because I call a spade, but there a हम्म lot of people are just selling stories with हम्म with the caveat that in long term everything will be fine. I mean, I just राइट cannot stand that kind of a pitch. राइट राइट। And being hopeful is also very easy. जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म भाई आपने कुछ लिया है, अब नहीं चल रहा है तो ठीक है भाई, अब चलेगा, आईटीसी चलेगा किसी दिन, दैट काइंड ऑफ अ हम्म थिंग। यस बैंक में बहुत लोग होप बनाए बैठे थे। जब 400 से 280 आया, हमने बहुत लोगों को कहा निकल जाओ निकल जाओ, फिर 130 आ गया, निकल जाओ। नोबडी वाज लिसनिंग, पीपल वर एवरेजिंग, हम्म they were buying more and more and more. Why do you want to do हम्म that? I mean,
if some stock is going from 400 to 280 to 130, at some Hmm. point you should be getting out to reevaluate that your thesis does not seem to be working. How long do Hmm. you want to keep wedded to that idea? Hmm. ये जो मैरिज वाली कहानी है ना स्टॉक्स की, मैरिज अपने घर में ही रखिए ना, आप स्टॉक्स के साथ क्यों मैरिज करना चाहते हैं? सही बात है। तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट इन 3 to 5 years का नैरेटिव हमारे एक दिमाग में चलता रहता है। तो मेरी सही है। एक्सपीरियंस में ये निकल के आया कि जो सबसे बड़ी मार्केट में प्रॉब्लम है लोगों को इन्वेस्टिंग में, ट्रेडिंग में, हाँ, वो एग्जिट हाँ, एग्जिट को लेकर है। एकदम एब्सोल्युटली। तो इफ यू वांट टू मास्टर द मार्केट, यू नीड टू मास्टर द एग्जिट। एंट्री फिर भी हो जाती है, एंट्री इज नॉट ए प्रॉब्लम। सपोज बुल मार्केट चल रही है, अब आपने 20 पे एंटर किया, 30 पे एंटर किया, 40 पे एंटर किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्टॉक 100, 200, 300 जा रहा है। लेकिन वो जब वो 300 से गिरना शुरू हो रहा है, अब आपने 250 पे एग्जिट किया, 200 पे एग्जिट किया, 150 पे एग्जिट किया, वो बहुत जरूरी है। Like in this last rally 2017-18, we had graphite, we had HEG, we had Rain Industries, इस तरीके के मल्टी बैगर्स हमारे सिस्टम में आए और हमने 300, 400, 500% उसमें कमाया। क्योंकि हमारी एक तो पॉलिसी है कि भाई जो 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 स्टॉक रन कर रहा है उसको उसको रोकना नहीं है, और जब एग्जिट की क्राइटेरिया मीट होएगी तो आंख देख के एग्जिट कर देना है, फिर नहीं सोचना कि भाई ग्रेफाइट की कितनी अर्निंग आनी है और इसकी क्या फ्यूचर है और क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं सोचना। Because what happens is most people will study so much about that particular stock. अब आपने कोई स्टॉक खरीदा हुआ है, आप उसकी सारी दुनिया भर की स्टडी कर रहे हैं, सारी न्यूज पढ़ रहे हैं, उसका एड देख रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, उसका उसका प्रोडक्ट खा रहे हैं तो खुश हो रहे हैं। वो आप यू ग्रेजुअली बिकम ए मेरिट पार्टनर टू दैट स्टॉक, और वहां से एग्जिट बहुत मुश्किल है। आपका स्टॉक 100 का 50 हो गया, अब आप कह रहे हैं कि नई स्टोरी तो बहुत अच्छी है, अभी तो सिर्फ कोविड की वजह से गिरा हुआ है। that kind of you tend to justify the current price because of external reasons, while there may have been an internal reason to start with. And you have seen so many stories. You are very young, you probably have not seen, but in late 90s, in early 2000s, in .com bust in 2008, so many successful stories, whether it was infrastructure, whether it was IT, whether it was housing companies, वो सब स्टोरी धरी रह जाती है जब बेयर मार्केट शुरू होती है। सही है, सही है, राइट। सो एग्जिटिंग वेरी अर्ली इन प्रॉफिट और वेरी लेट इन लॉस, ये दोनों बिग रीजंस हैं फॉर अंडर परफॉर्मेंस। इन दोनों को आपको रिमूव करना है, और एग्जिट डिसीजन की कॉम्प्लेक्सिटी को हटाना है। मैं ये नहीं कह रहा आप भी मोमेंटम इन्वेस्टिंग करिए, हर आदमी नहीं कर सकता मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ना करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सब करना शुरू कर देंगे तो मेरा दुकान बंद हो जाएगी। राइट। So the complexity of exit decision is that you need to be disciplined to execute it. इतनी complexity आप रखिए कि आप जब स्ट्रेस होंगे, जब आप बिल्कुल ही मार्केट आपको ऐसी पोजीशन अगेंस्ट द वॉल खड़ा कर देगा, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं होनी चाहिए उस समय कि आप डिसीजन ना ले पाए। क्योंकि अगर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है कि 6 या 10 तरीके के वेरिएबल्स चल रहे हैं कि मैनेजमेंट भी तो अच्छी है और दूसरे एफएमसीजी कंपनी अच्छी चल रही हैं, या इसमें ये कुछ होने वाला है, वो सारा पूरा पैराफर्नेलिया आपको एग्जिट करने से रोक देगा। इट शुड बी क्लियर कट, इट शुड बी इन अ वे कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल एग्जिट पॉलिसी। ये हो गया तो मैं निकल रहा हूं, फिर सोचना नहीं है। एब्सोल्युटली। तो इसको अगर हम देखते हैं ओवरऑल, तो सिंपल स्ट्रेटेजी इज वन दैट रिमूव्स एम्बिग्विटी, इट गिव्स यू ए साउंड स्लीप। मैं इसको बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता हूं ये सेकंड पार्ट को, कि अगर आपको रात को स्लीप में इशू आ रहा है बिकॉज ऑफ योर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, इसका मतलब आप ओवर लिवरेज्ड हो, आपका कोई प्लान नहीं है, और आपको बैक ऑफ करना चाहिए। अगर आप वो कोई फिटबिट पहन के देख लीजिए कितनी आपको नींद आ रही है, अगर आपको वैसे नहीं पता लग रहा है तो। अगर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस है रिगार्डिंग द वर्क दैट यू आर डूइंग इन द मार्केट इन योर स्लीप, that means you are overextending yourself. It is very very clear, it is just a straight example. तो आपको रिड्यूस करनी है, पोजीशन साइज आप रिड्यूस करिए अपनी, शायद कैप अपनी, अगर आपने 50 लाख रुपए लगा रखे हैं तो आप 25 लाख पे आ जाइए। आपने अगर 2000 निफ्टी पे आप गेम खेल रहे हैं तो आप 500 पे आ जाइए। आप बेसिकली यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप सो दैट योर स्लीप डज नॉट गेट अफेक्टेड।
You cannot become, the trading great or investor great overnight. It is a long process, but it's a stepwise process. फिर तीसरा पॉइंट मैंने अपने लिए थोड़ा सोचा कि भाई मेरे को पेन नहीं चाहिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई आई डोंट लाइक टू हैव लॉसेस, एंड आई गो टू एज फार एन एक्सटेंट टू गेट अ वेरी नाइस बैलेंस बिटवीन पेन एंड गेन. ऐसा नहीं है कि मैं एफडी में जाके बैठ जाऊंगा कि भाई मेरे को कोई पेन नहीं चाहिए, मेरे को गेन भी चाहिए. तो आई नीड अ बैलेंस बिटवीन पेन एंड गेन. तो पेन और गेन का बैलेंस के लिए मैंने अपनी ये स्ट्रेटजीज बनाई, जिसके अंदर एग्जिट डिफाइन किया. मैंने कहा कि अगर मेरे को 15% भी अगर मेरे को मिलता है ओवर ए लॉन्गर पीरियड, मेरे को ठीक है, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए. हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम मेनी पीपल हैव. किसी को 25% सीएजीआर चाहिए, किसी को 35% सीएजीआर. अरे भैया वॉरेन बफेट भी नहीं कमा पाया 25%. तो यू नीड टू हैव ए रियलिस्टिक एप्लीकेशन एक्सपेक्टेशन. आप 15% से शुरू करो, फिर धीरे धीरे यू इम्प्रूव योर स्ट्रेटजीज. मे बी यू कैन गो टू 20, मे बी यू कैन गो टू 25, मे बी देयर आर पीपल हु कैन अचीव 35, 40 also. There are a lot of great traders and investors in the world. तो gradually step by step. अच्छा, फिर मेरे को था, क्योंकि जब जैसे मैंने ये सब शुरू किया आफ्टर माय ब्रोकिंग डेज, तो 20 साल तो मैंने ब्रोकिंग करी. उसके बाद मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा मैं रिलैक्स करता हूँ लाइफ में. इतना पैराफर्नेलिया कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, इसमें से निकलते हैं, फ्रीलांस अपना पोर्टफोलियो खुद चलाएंगे. और ट्विटर पे फिर मैंने थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो शेयर करना शुरू कर दिया. मैं बोर हो गया अकेले बैठे बैठे 2-3 साल. आई वाज रनिंग माय पोर्टफोलियो एंड रनिंग ऑल दी स्ट्रेटजीज जस्ट फॉर माय ओन मनी. इतना मेरे को 15% भी निकलता है तो मेरे लिए बहुत है. तो देन आई हैपेंड टू गो ऑन ट्विटर एंड आई स्टार्ट शेयर्ड वन स्ट्रेटजी, और मैंने 1 साल वो स्ट्रेटजी फ्री में सबको शेयर कर दी. तो बड़ी वहां पे फॉलोइंग आ गई और वो बड़ी अच्छी रिटर्न भी आई उस साल भी अच्छा था मार्केट के लिए. 52% रिटर्न आ गई उसके अंदर. फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई आप हमें भी एडवाइस कर दो. तो मैंने एक एडवाइजरी लाइसेंस लेके फिर same strategies what I was running for myself, I start giving to others also. Right. So where I came into that story was कि high return to time spent ratio चाहिए था मेरे को ये चाहिए था कि भाई मैं 15-20 मिनट लगाऊं हफ्ते में और मेरा मार्केट का काम खत्म हो जाए, मेरे को ज्यादा नहीं करना. तो ये सारी जो वीकेंड इन्वेस्टिंग की मेरी स्ट्रेटजीज हैं कि भाई आप सिर्फ फ्राइडे को एक 10 मिनट लगा के आप पूरा अपना पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू लुक एट इट फॉर द एंटायर वीक. इट वाज basically that the birth came out of this requirement that I don't want to spend too much time on it. And even if some performance is gone, that's fine. तो अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ इसमें. Yes sir. तो ये वोडाफोन आइडिया है. ठीक है. अब इसके अंदर आप देखेंगे, अगर हम सपोज लास्ट के इसके पिछले 4-5 साल देखें, यहाँ पे 2015 में जिस दिन वोडाफोन ने एंटर किया था आइडिया के अंदर, इसका रेट करीबन 80 या 90 रुपए था उस दिन. आई रिमेम्बर बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड्स बिकेम द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर फॉर दिस कंपनी एंड आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम. और मैं ये स्टॉक देख रहा था और मैंने कहा भाई कन्वेंशनल थॉट क्या है अभी कि वोडाफोन इस कंपनी में आ गया तो ये तो पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा. इट इज बिकमिंग ए डोमेस्टिक कंपनी टू ए मल्टीनेशनल कंपनी and a big brand, big bucks will come. And just look at what has happened. 100 रुपए का वो आइटम 2 रुपए पे आ गया. राइट. अब आप क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट देख लीजिए, टॉप क्लास, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर. फंड अवेलेबिलिटी, कैपिटल अवेलेबिलिटी, टॉप क्लास. तो इफ यू आर सोल्ड टू दिस आइडिया एट 100 rupees, you will be buying madly at 80, you will be buying madly at 60, you will be buying madly at 40, and by that people have done, they have averaged like crazy in this and they have lost all their capital. और अगर कोई प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी कर रहा होता, वो 100 पे अगर उसने ले भी लिए होते, वो 80 रुपए पे बाहर निकल के बैठ जाता. सही बात है. एटलीस्ट ही वुड हैव सेव्ड 80 टू दिस 5 रुपी ड्रॉप. करेक्ट. ये ग्रेफाइट में हुआ. ये 1 साल में ये कहां से कहां चला गया. देखिए 100 रुपए से 1100 रुपए हो गया. एक 1.5 साल में एक स्टॉक 11x हो गया है. और अब वो नीचे आना शुरू हो गया. यहाँ पे वो नीचे आई. मंथली चार्ट्स हैं इसलिए आपको एक स्ट्रोक में एक वो दिख रहा है. बट समवेयर अराउंड 700-800 you should have thought why is it dropping this much. आप 800 पे भी निकल गए हो तो भी आज 250 रुपए से बहुत ऊपर. रेन इंडस्ट्री अगेन सेम थिंग.
₹40 का 450 बैक टू 90-100 रुपीज। ये एक डिफरेंट टाइप का स्टॉक है, अतुल लिमिटेड। ये चलता ही चला जा रहा था, एटलीस्ट जहां तक ये चार्ट बना हुआ 2020 से पहले तक का है ये। तो अब आप देखिए, इसमें अगर आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं और ये कोई आपको एग्जिट नहीं दे रहा नीचे की, तो आप इसको चलने दे रहे हैं, बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ने दो। जब गिरना शुरू होगा तब देखेंगे। ये देखिए, इन्फो एज, नौकरी, थोड़े से डेटेड चार्ट्स हैं, बट यू विल गेट द आइडिया बेसिकली। Bajaj Finance was going up, but then post that it went to 5,000, 6,000, then it dropped to 1,900, right? So there would have been an opportunity if you had any parameter of exit, whether it was a trailing stop loss, whether it was a moving average stop loss, whether it was an ATR based stop loss, whether it was a MACD based stop loss below a certain level, whether it was an RSI based stop loss, कोई भी आप स्ट्रेटेजी पैरामीटर अगर आप यूज करते हैं, लेकिन एग्जिट पैरामीटर अगर आपका डिफाइंड होता, तो आप 4,000 पे निकल जाते, आप 4,500 पे निकल जाते, कहीं तो निकलते ना, और फिर फ्रेश व्यू लेते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तो अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स इन द मार्केट एंड कैप्चरिंग इवन स्मॉल पार्ट्स ऑफ दोस ट्रेंड्स कैन गिव अस गुड प्रॉफिट। यू डोंट हैव टू कैप्चर दिस एंटायर थिंग। आपने यहां से लेके यहां तक भी कैप्चर कर लिया, बहुत है। आपको बिल्कुल बॉटम नहीं पकड़ना है और टॉप नहीं पकड़ना है, आपने बीच का भी मीट खा लिया अगर, तो दैट्स गुड इनफ। लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो मेक्स मनी इन अप ट्रेंड्स। तो अब अप ट्रेंड भी होते हैं मार्केट में और डाउन ट्रेंड भी होते हैं, और मोर और लेस इक्वल टाइम के लिए होते हैं। तो अगर आप लॉन्ग ओनली खेल रहे हैं, जो कि 99% ऑफ द मार्केट लॉन्ग ओनली होती है, सिर्फ इन्वेस्ट करके चलते हैं, तो आपका पैसा जब मार्केट गिर रही है, तो एक तरह से आप पैसे भी लूज कर रहे हैं अपने स्टॉक्स में, और आपकी कैपिटल की अपॉर्चुनिटी भी लूज कर रहे हैं। यू आर गेटिंग हिट ट्वाइस। यू आर लूजिंग मनी व्हेन द स्टॉक्स आर कमिंग डाउन, एंड यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ योर कैपिटल व्हिच इज स्टक इन दोस स्टॉक्स, राइट? सो इट्स अ डबल वैल्यू। तीसरी चीज, डाउन ट्रेंड्स आर वेरी पेनफुल एंड स्ट्रेसफुल। इसकी आप मेजर नहीं कर सकते कितनी कॉस्ट है, बट दे आर हर्टिंग यू वेरी बैडली, मेंटली, हेल्थ वाइज, एंड इट सक्स आउट द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूं। अगर मुझे कोई दो स्ट्रेटजी आप ऑफर करिए, एक में 30% मिल रहा है, एक में 20% मिल रहा है, लेकिन अगर 20% वाले में मेरे को ड्रॉडाउन या लॉसेस नहीं हो रहे हैं, आई विल एनीवे टेक दैट। 10% कम कमा लूंगा मैं, लेकिन आई विल बी हैप्पी, आई विल बी पॉजिटिव, आई लुक फॉरवर्ड टू द मार्केट, राइट? जैसे एक एग्जांपल और देता हूं। दो जने हैं, ए और बी, उन्होंने दोनों के पास 100 रुपए हैं, ठीक है? ए did very well in some stock. He went from 100 to 500. Then let's suppose that was Rain Industries. You know, it went from 100 to 1,000. Then it dropped to 200. ठीक है? दूसरे ने कोई और सिंपल सा स्टॉक कोई चुना, उसने कोई HDFC बैंक चुन लिया, उसके 100 के 250 हो गए वैसे, या 200 ही हुए, चले फॉर एग्जांपल से। both are at 200 now. They started both at 100. They are both now at 200. Who is happy? The guy who just went from 100 to 200 is very happy. His money has doubled. He has not seen a loss. The guy who went from 100 to 1,000 back to 200 is destroyed, because he has seen 1,000 and he feels that I have lost 80% of my gain. उसके शुगर हो गया सर। उसको शुगर नहीं, बहुत कुछ हो गया उसको। तो मैं पॉइंट ये कह रहा हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन दोनों की अगर सेम भी है, द जर्नी मैटर्ड। द जर्नी ऑफ बी वाज वेरी हैप्पी एंड द जर्नी ऑफ ए इज हॉरिबल। So again, I mean, some people would want A, you know. Yeah. But I am very happy with B. Yeah. मैं आपको बता सकता हूँ, पिछले 2 महीने में मेरा पोर्टफोलियो हर रोज ऑल टाइम हाई बना रहा है, पर्सनल पोर्टफोलियो। जबकि मार्केट में अभी भी वी आर डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई, बिकॉज देयर इज एसेट एलोकेशन एंड देयर आर स्ट्रेटजीज वेयर आई डोंट वांट टू सिट ऑन लूजर्स।
मार्च में हमारी Right. मोस्टली स्ट्रेटेजी में सब बाहर हो गया था, सब कैश में बैठे थे मार्च में. Right. 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 सो यू नीड टू एक्सेप्ट लॉस. इसकी मार्केट की सबसे बड़ी जो चीज है कि आपको लॉस एक्सेप्ट होना चाहिए. आपको प्रॉफिट चाहिए लेकिन आपको लॉस Hmm. एक्सेप्ट नहीं है, तो ये आप इस मार्केट के लिए नहीं बने. You need to have Hmm. acceptance of loss. If you want 20 rupees of gain on your 100 rupees investment, you need to see 10-15 rupees loss also. You have to bear that. आप लॉस में तो आप 20% वेट करने को तैयार हो और गेन आप 2% पे निकल जाओगे, तो ऐसे नहीं चलेगा. तो ये एक मैंने इसकी सही है. समरी बनाई कि क्या ये हम 7 पॉइंट अचीव कर सकते हैं with Hmm. simple rules in the market. That Hmm. my portfolio should always have mostly winners. Okay. मोस्टली विनर्स मतलब कि अगर मेरा लूजर आ रहा है पोर्टफोलियो में तो मैं उसमें से निकल रहा हूँ. मेरे को सिर्फ Hmm. विनर्स रखने हैं अपने पास. Hmm. नेवर हैव टू लूजर्स फॉर टू लॉन्ग इन द पोर्टफोलियो. ये तो मैंने बोल ही दिया. अच्छा, नो Hmm. वरी ऑन एलोकेशन विद इन द पोर्टफोलियो. अब ये है कि अच्छा मेरे को कोई स्टॉक पसंद आ रहा है और वो क्योंकि हम इतना मैरिड हो Hmm. जाते हैं उस स्टोरी के साथ और हम इतना पढ़ लेते हैं उसको कि हम कहते हैं यार नहीं 80% पैसे इसी में लगाए. और Hmm. मैंने खुद ये गलतियां करी हुई हैं अपनी लाइफ में एट वेरियस पॉइंट्स Hmm. लॉन्ग टाइम बैक. Hmm. So this is how you really kill your portfolio. Is that you allocate Hmm. because you are believing so much into a particular story, and you find कि नहीं Hmm. यार ये this is a multi bagger and I'm so sure of it. I'll put all my eggs into this basket. तो Hmm. आपको एलोकेशन की वरी नहीं होनी चाहिए, वो आपका प्री डिफाइंड होना चाहिए कि भाई मैंने 10% से ज्यादा एक स्टॉक में नहीं लगाना, मैंने 5% से ज्यादा नहीं लगाना. Hmm. अगर आपका वो रूल Hmm. बना हुआ है तो वरी खत्म हो गई ना कि कितना लगाना. Hmm. फिर अब आपका स्टॉक मूव कर रहा है, उसकी आपको वरी नहीं होनी चाहिए कोई. एक मैं बहुत छोटी चीज सबको बोलता हूँ कि आप पैसे कमा रहे हो ना मार्केट में, आपका स्टॉक ऊपर जा रहा है, आप घबरा क्यों रहे हो? Hmm. यू आर मेकिंग मनी. Why are you सही है. fearful about making money? You should be happy about making money. You should be confident you are making money. Why are you fearful that you are making money? You should be fearful if you are losing money. सही है. Right? तो ये एक्चुअली पूरी बिहेवियरल गेम है, पूरी साइकोलॉजी की गेम है. लोगों ने इसको स्टॉक मार्केट की वो स्टॉक्स की स्टोरी बना के गेम बना रखी है. अच्छा जी अब ये वाली स्टोरी चलेगी, ये मैनेजमेंट, कुछ नहीं है वो सब 20% छोटी मोटी चीजें हैं. आपकी बिहेवियर मेन चीज है. सही है. आप डिसिप्लिन, आप बिहेवियर कैसे रखेंगे, आपकी डिसिप्लिन कैसी रहेगी, आप अपने ही रूल्स बनाए हुए फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, दैट इज द की. नो वरी ऑन हाउ लॉन्ग द प्रॉफिट्स विल रन. क्लियरली डिफाइंड एग्जिट पॉलिसीज एंड एग्जिट पॉइंट, ये हमने बोल ही दिया पहले. फ्यू मिनट्स Hmm. ऑफ Hmm. वर्क पर वीक, टोटल पीस ऑफ माइंड एंड गुड स्लीप. तो ये मैंने देखा कि ये 7 चीजें जो हैं ये मुझे चाहिए थी और ये अचीवेबल हैं. So सही है. if you can make decent money by having good sleep, peace of mind, happy mind, positive mind, why you want to get into Hmm. things that worry you, stress you, give you all kinds of health problems. अच्छा, ये मैंने Hmm. नीचे एक जोक इसमें ऐड किया हुआ है कुछ कि लेट द स्टार फंड मैनेजर्स एंजॉय द लाइमलाइट. आपको बीट नहीं करना है, ये रेस नहीं चल रही है कोई. सबसे पहली बात तो ये कोई रेस नहीं चल रही है. अगर कोई 20% कमा सही रहा है है. उसको कमाने दो, बी हैप्पी फॉर इट. आपको 15 आ Hmm. रहे हैं, दूसरे को 20 आ रहे हैं, कोई बात नहीं. आपको आपकी कैपेबिलिटी जहां तक है आपके उतने ही आएंगे. दूसरे Hmm. को देख के क्यों एक जो ये कंपैरेटिव जो बात है ना कि भाई उसके इतने आ गए मेरे इतने क्यों नहीं आए, दिस इज नेगेटिव एनर्जी. सो इफ सम मैनेजर इज डूइंग वेरी वेल, आई फील वेरी हैप्पी फॉर हिम कि यार देखो क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस करी. राइट, मैंने जो डिजाइन किया है उसके लिए मेरी जो परफॉर्मेंस आ रही है आई एम हैप्पी फॉर दैट. मेरी रिक्वायरमेंट ही 15% है, मेरे को अगर 17 आ रही है आई एम वेरी वेरी हैप्पी. कोई अगर 25 कर रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, Hmm. उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी. राइट. Hmm. तो ये वो है. अब आप तो इसमें आई कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, बट व्हाट आई वांट टू Hmm. sort of in the end say that create a plan, have a structure to whatever you're doing, create Hmm. documentation of what you are trading, how you are trading, learn from your own trades कि मैंने पिछले महीने ये गलती Hmm. करी अब मैं ये ना करूं. और ग्रेजुअली आप देखेंगे कि वेल्थ बिल्डिंग इतना डिफिकल्ट काम नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है इसको. और जितने लोग पैसे लूज करते हैं, यू विल नॉट बिलीव, आई गेट सो मेनी मेल एवरी डे एंड आई फील सो सॉरी that somebody has looted them by giving them wrong advice,
या कोई गलत टाइप की ट्रेडिंग करवा रहा है किसी को, मतलब ये जरूरत ही नहीं है। और अगर आपको दूसरे लोगों पर विश्वास नहीं है अगर, तो आप सीधा इंडेक्स फंड में पैसे लगा दीजिए, या आप कोई एसेट एलोकेशन प्रॉपरली करिए। अच्छा, बहुत सारे लोग एसेट एलोकेशन नहीं करते हैं, सिर्फ इक्विटी में रखते हैं। तो जब मार्केट में फॉल होती है और जबरदस्त फॉल होती है, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी यंग व्यूअर्स वुड हैव सीन एक्चुअल बेयर मार्केट, क्योंकि बेयर मार्केट आई नहीं है बहुत टाइम से। और वर्ल्ड वाइड जो फंड मैनेजर्स हैं आज की डेट में, 2008 के बाद पहली फॉल उन्होंने देखी है यहाँ पे। तो एनीबडी हु इज ओवर द एज ऑफ 30 years हैज सीन देयर फर्स्ट फॉल ऑफ देयर लाइफ। सो व्हेन द बेयर मार्केट कम्स, इट विल कम फॉर क्रेजी लॉन्ग पीरियड्स। ये तो अभी हमने जो डिप देखा, ये बेयर मार्केट नहीं है, इट वाज जस्ट लाइक अ ट्रेलर। में भी एक्सटेंट ऑफ डिप काफी हाई था, बट द एक्सटेंट ऑफ टाइम इन द एट द बॉटम वाज लिटरली नथिंग। वो जो ग्राइंडिंग मूव आती है जिसमें सालों साल कुछ नहीं होएगा, सिर्फ ग्राइंडिंग मूव होती रहेगी, उसके लिए आपको तैयारी करनी, और उसके लिए आपकी स्ट्रेटजी रेडी होनी चाहिए। और उसके लिए स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी कि ठीक है, मेरे को स्टॉक से पैसे नहीं निकल रहे अभी, लेकिन मेरे पास कुछ और एसेट होना चाहिए जहां से मेरे को एक बैलेंसिंग मिले, हेज मिले। तो मैं बहुत, आपने अगर ट्विटर मेरा फॉलो करते हैं तो मैं गोल्ड के बारे में बहुत लिखता हूँ, बिकॉज आई फील कि एक बहुत जबरदस्त हेज है जो वो एक एसेट क्लास है प्रेशियस मेटल्स के, स्पेशली गोल्ड, कि वो एक बहुत जबरदस्त हेज है टुवर्ड्स अगेंस्ट equities, against our government, against our currency। अब हम इंडिया में बैठे हैं अगर, और हमारी सारी एसेट्स INR बेस्ड हैं, और कल को सपोज कोई ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो बिल्कुल अनस्टेबल गवर्नमेंट हो, एंड इट इज नॉट ए अनइमेजिनेबल थिंग, 10 साल बाद, 15 साल बाद, पता नहीं, जब भी अगर ऐसी सपोज कोई गवर्नमेंट आ जाते, जब बिल्कुल ही कोई मतलब जंगल राज बन जाए यहाँ पर, योर करेंसी विल गो फॉर अ टॉस। INR will go from 75 to 150 in a second। तब आपको कौन बचाएगा? तब आपको ऐसे एसेट्स बचाएंगे, either which are productive assets, so good stocks will save you, और internationally priced commodities will save you। जैसे गोल्ड है, it is internationally priced, इंडियन रुपी 70 हो चाहे 50 हो चाहे 150 हो, उसका डॉलर रेट वहां सेट होता है। Right, so you have in India a facility or a privilege of holding an asset which is internationally priced। तो आपको जबरदस्त हेज मिलती है अपने 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 INR पोर्टफोलियो के लिए उससे। और अगेंस्ट इक्विटी इट इज अ ग्रेट पोर्टफोलियो हेज। मैं एक थंब रूल देता हूं, आपकी जितनी एज है उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, उतना परसेंटेज ऑफ योर नेटवर्थ आपकी गोल्ड में होनी चाहिए। ये मेरा मिनिमम एक मानना है। बहुत लोग नहीं इसको बिलीव करते हैं, बहुत लोग इस पे हंसते भी हैं, बट दैट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ गोल्ड दैट यू शुड बी होल्डिंग विद योरसेल्फ एज ए हेज फॉर योर पोर्टफोलियो, फॉर योर लिविंग इन इंडिया, एंड एज अब आप अगर पुरानी फिल्में देखेंगे तो जो लोग पाकिस्तान से भागकर आए थे वो अपनी जेब में क्या रख के लाए थे? जस्ट वन स्मॉल पीस ऑफ सम ज्वेलरी or some gold bar or whatever they had, and they recreated their life with that। So this is the kind of an asset that gold is। anyhow, so I was digressing। तो बेसिकली ये सब चीजें हैं जो आपको बड़े लेवल पे एसेट एलोकेशन करनी है, और विद इन इक्विटी लेवल पे आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी है। a lot of people say कि डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट गुड एंड डाइवर्सिफिकेशन कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए, but I am a firm believer of diversification, and there are many resources on Twitter पे। आप ट्विटर को बहुत लोग कम यूज करते हैं मेरे हिसाब से, इतनी नॉलेज है वहां पर, एंड यू आर गेटिंग टू मीट एंड आस्क क्वेश्चंस विद द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड्स बेस्ट माइंड्स, और सबकी थीसिस आपको पढ़ने को मिल रही है। अब रे डालियो जैसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट फंड के इन्वेस्टर वहां अवेलेबल हैं जो आपको बता रहे हैं कि भाई हाउ the currency cycles change over 70-80 years, and how the dollar is going to be changing over the next decade। So these kind of things, macro things, one should be looking at, not just being holed up in Indian equity stocks, is what I say। तो मैंने I think काफी बोल लिया। अब आप जो पूछना चाहेंगे आप पूछ। मेरे लिए तो ये 2 क्रेडिट का पूरा इलेक्टिव कोर्स हो गया, मेरा पूरा रिवीजन हो गया है।
And I can imagine why you have such a vibrant, peaceful smile, that you are actually in a very much peace, because now you have really arrived at the nirvana of right investing or trading in the market. I मतलब think एंजॉय what you करना have चाहिए मेरे explained to us हिसाब is से। यू हैव टू एंजॉय योर वर्क। इफ यू आर क्रिंजिंग अबाउट योर absolute. वर्क, इफ यू आर fearful about your work, if you are, you have to enjoy your work। अगर आपको एंजॉयमेंट नहीं मिल रही तो फिर देन यू शुड लुक फॉर समथिंग एल्स, बिकॉज ये बेसिक आइडिया ये है कि अगर Absolute. आप वर्क को एंजॉय नहीं कर पा रहे तो आप उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली सुपर। सो दोस्तों, ट्विटर की बात आलोक जी ने कह दी है, तो मैं बहुत सीरियसली आपको सबको रिकमेंड करूंगा, आप प्लीज उनके हैंडल को फॉलो करिए, क्योंकि एक अच्छी बात होती है कि हम उनके उनके भी थॉट को सुन पा रहे हैं, बट साथ में वो दूसरे लोगों को के इंपॉर्टेंट थॉट्स को भी रीशेयर करते हैं, तो आप उनके थ्रू और भी रिलेवेंट लोगों के ट्विटर हैंडल को फॉलो कर पाएंगे। सो प्लीज फॉलो आलोक जी, एंड आई एम श्योर दैट जहां जहां उनको लगेगा कि हाँ कोई सेंसिबल बात कर रहा है, तो आलोक जी भी उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे, तो आप कुछ क्वेश्चन हो, कुछ बात करनी हो, तो आप उनके साथ कर सकते हैं। बिल्कुल करिए, बट आई इनकरेज तो लॉट ऑफ इंटरेक्शन एंड ईमेल इज माय बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप मुझे ईमेल भेजिए, मैं आपको जरूर जवाब भेजूंगा। fantastic. So Alok ji, thank you so much for this lovely interaction. Don't worry about the length of the video. बहुत जरूरी है इस तरह के वीडियोस मार्केट में रहे, इंटरनेट पे रहे। आपको तो पता श्योर। है आजकल यूट्यूबर्स किस किस तरह के वीडियोस बना रहे हैं, पर हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जितना नॉलेज फ्रीली लोगों तक डेप्थ वाला नॉलेज पहुंच जाए उतना अच्छा है। सो थैंक यू फॉर बिकमिंग एसोसिएटेड विद अस एंड हेल्पिंग अस इन रीचिंग दैट राइट एजुकेशन टू राइट ऑडियंस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू दोस्तों, मजा आया। मुझे तो हमेशा मजा आता है, आशा करता हूँ आपको भी मजा आया होगा। आलोक जी को बाय बाय करते हैं, और उनके साथ फ्यूचर में टच में रहते हैं। ट्विटर है और उनका जो पीपीटी है, फिनोमिनल पीपीटी दोस्तों। एक वीडियो ये 2 बार देखिएगा प्लीज, एक बार से नहीं होगा दोस्तों। मैं समझ पाया काफी कुछ, क्योंकि मैं खुद मार्केट में आज मेरे ऑलमोस्ट 12-13 साल हो गए, तो समझ पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज इसको 2 बार देखिएगा, तभी आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि सर क्या बोलना चाह रहे थे। Have a nice life ahead. Take care of yourself. ओके, Take care. थैंक यू। Alok ji, bye bye. Thank you.